السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے میرے دوستو۔ آج ہم بہت ہی پیاری ویڈیو پر میں بہت ہی پیارا سا قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، دریائے نیل میں کیسے ڈوب کر انہوں نے مرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اس ویڈیو پر آج ہم ریئیکشن دیں گے دوستو۔ فرعون جو تکبر اور غرور میں آ کر سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھ لیا تھا، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں، اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے، جہاں فرعون کی طاقت کا شور تھا، جہاں دبدبہ تھا، اس کی حکومتیں تھیں، وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے زوال کی ابتدا کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے دوستو کہ غرور انسان کو مٹا دیتا ہے اور عاجزی انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، جس ویڈیو کو ہم ریئیکشن دیں گے اس کا لنک جو ہے اس ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں، آپ وہاں جا کر پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور اس چینل کا نام یہاں اسکرین پر دیا ہوا ہے، آپ یہاں جا کر کے پوری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستو، اور ویڈیو میں بنے رہیے۔ ایک زمین جس پر صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا اللہ کی قدرت سب سے بڑھ بڑا کر رب ہوں۔ جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے رہے۔ اور پھر ڈوب گیا۔ ایک ایسی رات جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ انشاءاللہ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر، ذرا سنیے۔ اس دور کا سب سے طاقتور ملک، نیل کے کنارے بسے شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوئے، بتائیے دوستو، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور یہ ان غرور سب اور کے بیچ تکبر کی علامت ایک شخص، فرعون۔ بنی اسرائیل۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ کپڑے صرف الگ۔ اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایسے لوگ ایمان ظلم رکھتے کرتے تھے دوستو۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ، ان کی زندگی الگ۔ اور زور لگاؤ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے شام تک پتھر اٹھاتے، تکبر انسان محل کو بناتے، دوستو ہر ایک کے اور نظروں سے رات گرا کو دیتا ہے۔ تھکائے ہوئے گر جاتے۔ بے شک۔ ان کی عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، Bloody civilians۔ مصر کے گھروں کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ اس کا سمجھدار ڈر۔ کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات آخر فرعون نے انسان ہے، خواب ڈر تو دیکھا۔ ہوگا ہی دوستو۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون ہراس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ بے شک۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ اسی السلام رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا ختم کر دیا جائے۔ جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور وحشت میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب بہت عقل سارے چلی بچوں جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں قتل نامہ تھا۔ فرعون نے کہا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑی، ہزاروں معصوم جان سے گئے۔
इसी जुल्म के दौर में मूसा संदूक बनाते हैं। अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे देखो दरिया जरा में रख दोस्तों। दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। फिरौन के हुकूमत को खत्म अलैहिस्सलाम करने की वाले वालिदा ने अपनी बच्ची बेटी की से परवरिश उसी के घर में। दूर से देखते रहना मगर पास मत जाना। वो बहन छुप कर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के जी। किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। तब्बुर वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, लेकिन घमंड बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। एक मिस्री। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म क्योंकि अता नबी किया। थे ना। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहां दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर। फिरौन का चेहरा लाल। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ आमीन। यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा,
मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चल रहा था और अल्लाह यही से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, ओह क्या मंजर था यार। या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दो। तू मुकद्दस वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक फिरौन के दरबार में रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी जबान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है सारे लोगों को जो देखो। जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। सारे सांपों को निकल गया। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया। चेहरा लेकिन देखो। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। वो अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। ये भी तकब्बुर देखो। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदे में गिर गए। अब फिरौन अल्लाह का की घमंड आजमाइश शुरू हो गई। सख्ती और गहरा हुआ। वो चीखता, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान भेजा गया। ये न सिर्फ पानी की बुलंदी थी, ये पानी का नफाजे अजाब था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया, अन्न डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई। जराद, अजाब का एक दल जिसने जमीन की हर हरी चीज को मेरा खा रब लिया। एक है। एक देखो और जरा। अजाब भेजा गया। कुम्मल लोगों के जिस्म पर चिपक गया और हर चीज को परेशान करता गया। हर पल याद दिलाता था, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, ना तुम्हारी हवा से। और फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई, जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम इतना मौसम की तकब्बुर है तब्दीली दोस्तों, नहीं, लफ्जों के तकब्बुर बिना इंसान को आवाज गर्क देने कर वाला देता है। अजाब था। पांचवा अजाब और मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया। मछलियां डूब गईं। पानी गंदगी से भरा हुआ। और फिरौन फिर कहता, रवाना हो गया। ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानियों का जिक्र किया है और इनमें सिर्फ अजाब नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोश कुछ नहीं से कर अपने सकते। घर, अपनी बल्कि जिंदगी तुम्हारा वक्त तकब्बुर करीब से आ रहा निकलते है। हुए रास्ता रखा। न उनके पास ज्यादा सामान, यहाँ देखो न दोस्तों कोई अल्लाह का, तलवार, हज़रत सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का की मोजेज़ा। मदद का यकीन।
जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग वीडियो गायब हो AI से गए, जनरेट किया गया, उसका लेकिन बड़ा घमंड और दिलचस्प है जिंदा दोस्तों। हो गया। वीडियो को लाइक करना, शेयर हम करना दोस्तों। वापस पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर उनके सामने काफी गहरा नजर आता है। बनी इसराइल के लोग कहते हैं, हम फंस गए। ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है। क्या बात है मेरे भाई, मौत का लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, इतना खूबसूरत मंजर होगा मेरा उस रब वक्त। मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी पानी पर फिरौन का मारी। लश्कर पीछे पानी पीछे आ दो रहा है। हिस्सों में बट गया। जाओ दो तो पहले, दीवारें उठी, बीच पहले में जाओ सूखा तो। रास्ता निकल आया। लोग अब चीख देखो उठे जरा इन पर, इनको और बनी इनके साथ इस्राएल क्या का होने ईमान वाला है। मजबूत हुआ और उन्होंने उस रास्ते पे चलना शुरू किया। ये अल्लाह का मौजिज़ा है। फिरौन और उसकी फौज ने वो रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या वो कुदरत का दीवार निजाम है पानी के मेरे बीच दोस्तों। अपने घोड़ों और फौज देखो के जरा। साथ निकल गया। घमंड इतना गहरा देखो था दोस्तों वीडियो को, कि हक बताने वाली निशानियों के आह। बावजूद भी वो मान नहीं खत्म। रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स अब भी क्या करेगा? समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा फिरौन का आखिरी वक्त भी समंदर को नबी बंद कर दो। नबी का पीछा करते हुए गुजरा और वैसे ही उसी पानी में वो उधर गर्क हो जैसे गया। गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया। नहीं होगा। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। देखो जरा जब इनको, उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, खत्म हो गया। फिरौन कुदरत की है। नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बने। मेरे दोस्तों, फिरौन वो जालिम बादशाह था जिसने खुद को खुदा कहा, बनी इसराइल पर जुल्म किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हक की दावत को झुटलाया। जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले तो फिरौन अपने लश्कर के साथ ताक़ुब में आया। दरियाए नील के किनारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दरिया में लाठी मारी, दरिया दो हिस्सों में बट गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सलामती के साथ गुजर गए। मगर जब फ़िरौन उसी रास्ते में दाखिल हुआ तो पानी दोबारा मिल गया और वह अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। डूबते वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब ईमान हालांकि पहले नाफरमानी करता रहा। सूरह यूनुस, अल्लाह ताला ने उसकी लाश को इबरत के लिए महफूज रखा ताकि दुनिया जान ले कि तकब्बुर, जुल्म और सरकशी का अंजाम हलाकत है। अल्लाह की पकड़ से कोई ताकत नहीं बच सकती। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ। दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।